Hello, good morning. Myself M.K. Mishra, TGT English of JNB Devghar, and today I am here with the first chapter of Class 9 Supplementary Reader, The Lost Child by Mulk Raj Anand. We can see the image of lost child where the child was lost. This is the religious temple here. About the author, Mulk Raj Anand was an Indian writer in English famous for his depiction of the lives of the poor in the traditional Indian society. मुल्क राज आनंद एक भारतीय लेखक हैं जो इंग्लिश के मशहूर लेखक हैं और वो प्रसिद्ध हैं अपने लेखों के लिए गरीबों की जिंदगी और परंपरागत भारतीय समाज का. Mr. Anand is admired for his novels and short stories which have acquired the status of being classical works of modern Indian English literature, noted for the perceptive insight into the lives of the downtrodden and their analysis of impoverishment, exploitation and misfortune. Actually, Mr. आनंद उन्हें प्रशंसा मिली है अपने उपन्यास के लिए, अपने छोटे छोटे कहानियों के लिए, और उसको एक क्लासिकल वर्क का स्टेटस मिला है इंग्लिश लिटरेचर में, और बड़े ही प्रसिद्ध हैं अपने अंतर्दृष्टि के लिए जब उन्होंने दलितों की ज़िंदगी का विश्लेषण किया, उनकी गरीबी का, उनके शोषण का और उनके दुर्भाग्य का वर्णन अपने कलम से उन्होंने लिखा, तो उन्हें एक अंग्रेजी साहित्य में एक खास जगह मिली जिसे उनका क्लासिकल वर्क माना गया. और ऐसी ही कहानी लॉस्ट चाइल्ड उन्होंने लिखा जिसमें ग्रामीण मेले में गांव के ट्रेडिशन और वहाँ के रहने वाले लोग जो अक्सर गरीब होते उनकी ज़िंदगी को उन्होंने छूने की कोशिश की है लॉस्ट चाइल्ड नाम की कहानी में. Hello students, good morning to you all, and today I am here with the first chapter of Supplementary Reader Class 9, The Lost Child. First of all, I would like to say something about this particular chapter. The first question is here: have you ever visited any village fair? Obviously, if you live in villages, you must have visited the village fair, no doubt. This is the tradition of the village. Sometimes the children, the parents, and the entire colorful humanity, you will find that they are gathered in the village fair. The writer of this story, Mulk Raj Anand, he is very famous Indian writer in English and notable for his description of the lives of the poor in the traditional Indian society. Okay, he always write about the downtrodden people, and he had done analysis of the poverty-stricken people and their exploitation and their misfortune. Okay, and Mr. Writer Mulk Raj Anand has very nicely depicted here the situation of a village fair, a child and a parent. As you know, the title is The Lost Child, and here a little child is very excited. यहाँ एक छोटा सा बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा excited है because he was visiting the fair with his parents. And this journey to the fair is really encouraging, really overwhelming. ये जर्नी जो मेले की तरफ है बहुत ही उत्साहवर्धक है. And the story has been divided into 3 parts. First, the child on the way to the fair and what are the things he had seen on the way to the fair. Second is when the child is in the fair, and third is when the child lost in the fair, and fourth when he was picked up or helped by one of the gentlemen. In the first part, when the child was on the way to the fair and he was very
happy. He was very happy, and he was going to his parents, holding their fingers. But in between his journey, अपने यात्रा के दौरान, he was attracted by so many things in the way. First, he was attracted by a toy shop, and he decided to get that toy. But he knew well that his parents will not be agree to purchase that toy. The boy's mother, she was very conscious, she was very alert. बच्चे की माँ बहुत ही अलर्ट है, और वह बार बार सी मेड इट कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, डोंट लैग बिहाइंड, पीछे मत रहो, आगे जल्दी से बढ़ते चलो. ही वॉज अट्रैक्टेड, बट नॉट ओनली द टॉय, but in between the wage, he saw the flowering mustard field, he saw the dragonflies, he saw the insects and worms. And finally, when his mother and father was sitting under the grove, and when father called that boy, he was lagging behind, he came to the grove, and the petal of the flowers were falling down, and he was trying to collect the petal of flowers. वो फूलों के पेटल्स को, फूलों की पंखुड़ियों को वह कलेक्ट कर रहा था. बट सडनली जस्ट ही वॉज अट्रैक्टेड टू लिसन द क्विंग साउंड ऑफ द डव. डव एक बर्ड है, उसके साउंड को सुनकर वो अट्रैक्ट हुआ, एंड ही थ्रो द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, एंड ही वॉज अट्रैक्टेड बाय the cooing of the birds. This is the child psychology. This is the mentality of the child, that every child has the universal desire. हर बच्चे की खास प्रकार की डिजायर होती है, खास प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं, चाहे बच्चे गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, सब बच्चों की एक अपनी यूनिवर्सल डिजायर होती है. और समटाइम्स ही ऑलवेज डिमांड्स, रिक्वेस्ट्स हिज पेरेंट्स, हिज और पेरेंट्स. वो अपने माता पिता को रिक्वेस्ट करते कि उनके इस डिजायर को पूरा किया जाए. बट पेरेंट्स, द लिविंग इन द विलेजेस, द पुअर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द चाइल्ड. देयर आर 2 रीजन बिहाइंड इट. इसके पीछे 2 कारण होते जब वो बच्चे के डिजायर को पूरा नहीं कर पाते. द फर्स्ट रीजन इज व्हेन ही वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड सच थिंग, व्हेन ही वॉज नॉट फाइनेंशियली साउंड टू परचेज सच थिंग. And secondly, maybe that these things are not usable, not useful for the child. Now the child went to the fair. अब बच्चे मेले में पहुंचता, where through the winding footpaths so many people gathered there, and it was the assembly of the colorful humanity in the fair. And first of all, in the entrance of the fair, he was attracted by the colorful स्वीट्स. वो आकर्षित होता है खूबसूरत मिठाइयों की तरफ, जहाँ बहुत सारे मिठाइयाँ पड़े हुए हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, एंड सो मैनी थिंग्स, बर्फी. एंड हिज फेवरेट स्वीट इज बर्फी, एंड ही डिमांडेड, पापा आई वांट बर्फी. बट ही न्यू दैट पापा विल कॉल हिम ग्रीडी, एंड ही न्यू दैट पापा विल नॉट एग्री, पापा विल रिफ्यूज हिज रिक्वेस्ट. एंड सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम द पापा, ही मूव फॉरवर्ड. वो बिना पापा का उत्तर लिए हुए आगे बढ़ जाता है. आफ्टर सम टाइम ही हैड सीन द वेरी ब्यूटिफुल गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. कुछ ही दूर के बाद उसे गुलमोहर का माला दिखाई पड़ता है, और उस माला को वह खरीदना चाहता है, लेकिन पापा उसे भी मना कर देते. देन ही मूव फॉरवर्ड, एंड ही सी द रेनबो कलर बैलून, द कलरफुल बैलून्स, यू नो द बैलून्स that you always attracted towards the colorful balloons, and that child also attracted. And he again requested his parents, but the parents were not ready to just fulfill his desire, fulfill his demand. Parents नहीं उसके डिमांड को पूरा कर रहे थे. With his cruel eyes he gazed towards the child. बड़ी क्रूर आंखों से बच्चों को घूरते थे, और बच्चा डर जाता था. Then he wanted to listen the snake charmer's sound. स्नेक चार्मर जब अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाता है तो सांप मूव करता है, और वह आवाज़ उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और उसको वो सुनना चाहता था. लेकिन
Parents doesn't allow. Finally he made a bold request. वो बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि पापा आई वांट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट द मैरी गो राउंड. वो मैरी गो राउंड पर चढ़ना चाहता और उसको एंजॉय करना चाहता है. बट he remained busy. He engrossed to see that roundabout, and suddenly his finger was slipped out from the hands of his parents and he was lost in the fair. Now the next part कि बच्चा मेले में खो जाता है. जब वो मेले में खो जाता है तो he moved, he ran towards all directions. वो चारों दिशाओं में भागता है without knowing where to go, बिना जाने हुए उसे कहाँ जाना है. In search of his parents, in search of father and mother, he was shouting about his father and mother. A sense of sense of insecurity can be seen on his face. His face was swollen, his turban was untied, उसकी पगड़ी खुल जाती है. The tears rolled down from his eyes, आंसू उसके आँखों से गिरते हैं. And he cried, I want my mother, I want my father. But there is no way, there is no trace of his father and mother. Now the child can understand. Sometimes the child don't understand the value of the parents, but now that child understand the value of the parents. अब वो parents के value को समझ पाता है कि कैसे उसके parents जो हैं important हैं उसके लिए, और उसके absence में उसे बिल्कुल darkness दिखता है. Then he went to the entrance of the temple. The entrance of the temple was full of crowd, and he made all his effort to enter that crowd. He had torn the crowd and he tried to enter in search of his father and mother. But at one moment he found himself to be crushed underfoot. एक ऐसा समय भी आया जो अपने को पाया कि वो पाँव के नीचे कुचला हुआ चला जाएगा. But suddenly when he shrieked, when he cried with a high pitched, जब ऊंची आवाज़ में चिल्लाया mother and father, then one of the gentlemen picked the boy in his hand, उसको उठाया. He asked about him, he asked about his parents, उसको और उसके parents के विषय में उसने सवाल किए. That gentleman tried to comfort him, tried to console him by offering all those things what he wanted earlier. उस आदमी ने उसे खुश करने के लिए वो सारी चीज़ ऑफ़र किया, like the बर्फ़ी, गुलमोहर से garland of the gulmohar, then the snake charmer sound, the balloon, and even the roundabout, right? But the boy was lost all his charm, all his desire in absence of his father and mother. वो अपने माता पिता के absence में अपनी सारी इच्छाओं को खो चुका था. And he cried only, I want my father, I want my mother. Here the writer has left a question before the reader that we don't know, that is the emotional ending of the story, that we don't know whether the child was able to get his father or mother or not. We can only guess that that gentleman was really the very generous and very kind, and as he was in safe hand, he must reach to the to his mother and father. So you can say the message is here. The child has that own desire, they have their own expectations, and they want that expectations must be fulfilled by their parents. But sometimes the parents are not able to fulfill their desires. लेकिन कई बार parents उसके desires को पूरा नहीं कर पाते due to the poverty, अपनी गरीबी के कारण. Here the poet has a very wisely described the village fair and the tradition of the villages and the miserable condition of the people of the villages, how they are not able to fulfill the desire of their children. And finally, one more important point, important message the writer has given here. That important message is that we must understand the value of the parents, because when you have no parents, when you are without parents, you will feel that how you face the difficulties that the child has faced, and he lost all his charms, all his desires, and he wanted only his parents. Now I would like to tell you all these things, whatever I have given the lecture in the live video. I will tell everything by slide and images. So come to the next
slide and images and try to understand the complete story in your own way. Thank you very much. इस इमेज में मेले को दिखाया गया है। मेले की भीड़ में एक खोए हुए बच्चे को एक जेंटलमैन उठाते हुए, वहीं खूबसूरत दुकान सजे हुए जिसमें कि कलरफुल बलून्स आप जानते हो कि बच्चों के लिए खास आकर्षण होता है। मेले में उस दृश्य को दर्शाता हुआ यह इमेज राइटर ने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, एले, नैरो वे, इमर्ज, कम आउट, क्लैड, वेयरिंग जिसको ड्रेस बोलते हैं, ब्रीमिंग भरा हुआ, फुल ऑफ, फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड, लिंगर, हैंगिंग अराउंड, रिसेडिंग, लेफ्ट बिहाइंड, प्लीडेड, टायरेंट, क्रूएल। इस तरह कई ऐसे शब्द हैं जो इस स्टोरी के कीवर्ड हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। इसको, कहानी को पढ़ने से पहले इन वर्ड्स के मीनिंग को समझ लेना चाहिए ताकि आपको बुक को पढ़ने में कोई भी तकलीफ ना हो। जितने भी कीवर्ड हैं, जो ज़रूरी वर्ड्स हैं, उसको मैंने लिया है और उसके मीनिंग्स को हमने इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है। Now the key point of the story. The story is about a small child who is being taken to a village fair by his parents. स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है जिसे उसके पेरेंट्स मेले में ले जा रहे हैं। There are many attractions in the fair for the child like balloons, merry-go-round, flowers, sweets, toys. कई आकर्षण हैं। आप जब मेले जाते हो तो बलून, मैरी गो राउंड, फूल, स्वीट्स, मिठाइयाँ, खिलौने आदि देखते और उसे लेने या उसका एंजॉय करने की कोशिश करते। द चाइल्ड आस्क फॉर दी थिंग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बच्चे ने भी इन सारी चीज़ों की मांग पेरेंट्स से की थी, बट हिज पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू बाय दीज थिंग्स फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स इन चीज़ों को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। कारण चाहे जो भी रहा हो सकता है कि वो उसे अफोर्ड ना करता हो या फिर उसके लिए यूजफुल ना हो। एट वन पॉइंट द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड बाय द राउंड अबाउट। लेकिन एक जगह पर ऐसा हुआ कि चाइल्ड राउंड अबाउट की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हुआ एंड वांट्स टू टेक राइड ऑन एट एनी कॉस्ट, और उस पर वो किसी भी कीमत पर एंजॉय करना चाहता था। ही लैग्स बिहाइंड, वो उसके देखने में पीछे पड़ गया एंड ही स्लिप्ड आउट फ्रॉम हिज पेरेंट्स हैंड इन द हैवी क्राउड। और पेरेंट्स जो उसका हाथ पकड़ कर ले जा रहा था उसके हाथों से वह फिसल कर भीड़ में कहीं खो गया। अब वह एक खोया हुआ बच्चा था। ही स्टार्ट सर्चिंग हिज पेरेंट्स, क्राइंग लॉडली एंड रनिंग हियर एंड देयर इन द क्राउडेड फेयर। वह अपने माता पिता की खोज में चिल्लाता हुआ भागता रहा उस भीड़ में। सडनली ही वॉज पिक्ड अप बाय अ जेंटलमैन एंड ट्राइज टू काम हिम, offering all those things what his parents had not bought for him earlier. But now the child wants only his father and mother. He loses all his desire in absence of them. अचानक जब वो भीड़ में खो गया था तो एक रिलीजियस टेम्पल से जब वो किसी के पाँव के नीचे कुचला जाने वाला था, उसको एक जेंटलमैन ने पिक किया और उसे वो सारे सामान ऑफर किए जो वो पहले खरीदना चाहता था। लेकिन अपने माँ बाप के अब्सेंस में उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चली थी और वो चिल्ला रहा था कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब आप उस इमेज को देखिए जब मेले में जाते हुए बच्चे ने देखा था। आप देख रहे हैं फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड एंड द ड्रैगन फ्लाइज। एक्चुअली ये दो ऐसी चीज़ें थी जिस पर वह चाइल्ड काफ़ी आकृष्ट हुआ था जब वह ऑन द वे टू द फेयर था। उसके बाद इतना ही नहीं, वो आकृष्ट हुआ था टॉयज की तरफ जो मेले में सजे हुए थे और रास्ते में उन्हें डव्स मिले थे जो बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है। उसके कुक की आवाज़ सुनकर वह उसका दीवाना हो गया था और बहुत ही आकर्षित हुआ था। अब मैं बताना चाहता हूँ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी टू गो टू द फेयर। द लिटिल चाइल्ड वॉज एक्सट्रीमली क्यूरियस टू गो टू द फेयर विथ हिज पेरेंट्स। बेशक छोटा सा बच्चा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था अपने माँ बाप के साथ मेला जाने के लिए। ऑन द वे ही वॉज ऑफन अट्रैक्टेड बाय द थिंग्स विच ही हैड सीन लाइक टॉयज, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन फ्लाइज, इंसेक्ट एंड वर्म्स एंड क्वीइंग ऑफ द डव्स। आपने इन सारे चीज़ों के इमेजेज को जस्ट पिछले स्लाइड में देखा।
इन द फेयर ही वांटेड स्वीट बफी। अब जब वो मेला पहुंचता है तो मेले में वो खास चीज़ों को चाहता है, जिसमें कुछ नाम है स्वीट बफी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मल्टी कलर्ड बलून्स एंड एंजॉय द स्नेक चार्मर्स म्यूजिक एंड द राउंड अबाउट। ये 5 चीज़ें उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे जिसे वो मेले में एंजॉय करना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स ऑलवेज गेज्ड with his tyrant eyes and refused his request intently। उसके पेरेंट्स उसे बड़ी क्रूर आंखों से देखते थे और उसके रिक्वेस्ट को इनकार कर दे रहे थे जानबूझकर। At one point the child made a bold request to his parents that he wanted to go on the roundabouts। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से कि वह हर हाल में राउंड अबाउट को एंजॉय करना चाहता है मेले में, जो कि बार बार वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके रिक्वेस्ट को इनकार कर देंगे और इसलिए बिना वो जवाब लिए हुए आगे बढ़ जाता था। लेकिन जब वह राउंड अबाउट को देखा तो उसकी तरफ आकर्षित हुआ और उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें हर हाल में यहाँ राउंड अबाउट पर एंजॉय करने दिया जाए। लेकिन यही वो जगह था जहाँ उसके साथ एक अनफॉर्चुनेट थिंग्स, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है। अब एक बार मैं आपको इमेज में मेले की बर्फी, गुलमोहर के फूल, जो खूबसूरत फूल टंगे हुए हैं जिसकी तरफ बच्चा आकर्षित हुआ था, फिर स्नेक चार्मर्स म्यूजिक, आप देख रहे हो कि सांप को वो अपने म्यूजिक से लुभा रहा है और उसका सबसे बड़ा आकर्षण था वह था राउंड अबाउट। अब मैं बात कर रहा था कि वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या घटी। When he became a lost child, the child got no reply from his parents at his request। जब उसने जोरदार रिक्वेस्ट किया था पेरेंट्स से राउंड अबाउट एंजॉय करने के लिए तो कोई रिप्लाई नहीं मिला। Then he felt that he was lost in the fair। तब पता चला कि वो मेले में खो चुका था। His face was convulsed with fear। उसका चेहरा भय से सूज गया था। एंड टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आइज, आंखों से आंसू चल रहे थे। ही रेन टुवर्ड्स ऑल डायरेक्शंस विदाउट नोइंग वेयर टू गो। हर दिशाओं में वो भाग रहा था बिना जाने कि उसे कहाँ जाना है। बट ही फाउंड नो ट्रेस ऑफ हिज पेरेंट्स। उसे कोई ट्रेस नहीं मिला उसके पेरेंट्स का। ही वॉज वेलिंग एंड शॉटिंग। वह बिलाप कर रहा था, चिल्ला रहा था, मदर, फादर। यहाँ एक क्वेश्चन भी आता है कि किस प्रकार राइटर ने एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। हिज क्राई चेंज इनटू सॉब्स। उसकी चीखें सिसकियों में बदल चुकी थी, वो अब चीख भी नहीं पा रहा था। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। उसके कपड़े कीचड़नुमा हो गए थे। फाइनली ही वेंट टू द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल एंड ट्राइंग हार्ड टू एंटर देयर, टीयरिंग द थिक क्रॉड। Once he was about to crush underfoot when something good happened with him. What something good happened with him? That is the question, this answer. A stranger helped the boy. The child was picked up by a kind and generous man। उस बच्चे को उठाया गया एक उदार और दयावान व्यक्ति के द्वारा फ्रॉम दैट crowd। He asked the child about his parents। उसने उसके पेरेंट्स का पता पूछा। The man made his best effort to console the child। Console means सांत्वना देना। उसने अपने सर्वोत्तम प्रयास किए बच्चे को सांत्वना देने का, by giving him all those things what he wanted earlier। वो सारी चीज़ें देकर जो वो पहले चाहते थे। But the fear of the boy was so predominant। लेकिन उसका भय इतना हावी था that he did not show any interest in those things। उन्होंने उन चीज़ों में रुचि ही खो दी थी। He only shouted, I want my mother and father। The stranger was the symbol of humanity। वह स्ट्रेंजर कोई सामान्य नहीं बल्कि एक मानवता का प्रतीक था। And the child lost all the charms of worldly things in absence of his parents। और अपने पेरेंट्स की अनुपस्थिति में उनके सामने उन सांसारिक चीज़ों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उसने उन चीज़ों से बिल्कुल अपनी चाहत छोड़ दी थी। कई बार बच्चे को अपने पेरेंट्स के विषय में उसके महत्व का पता नहीं होता, लेकिन एक बार जब आपके पेरेंट्स ना हो, जिस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ राइटर ने उठाने की कोशिश की है, तो उन्हें पेरेंट के एब्सेंस के बाद तकलीफ़ें क्या होती हैं, इस तकलीफ़ का वर्णन यहाँ किया गया है कि जब बार बार उस आदमी ने वो सारी चीज़ें उन्हें दी थी जो वो पहले अपने पेरेंट्स से मांग रहा था, और उसके पेरेंट्स ने अपने क्रूर आंखों से, टेरेंट आइज से उसे सीधा सीधे रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन अब उन चीज़ों से सारे चार्म खत्म हो चुके थे और उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वह थी हिज मदर एंड हिज फादर।
Now, some important questions I would like to discuss with you. First question: why did the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अभी भी पढ़ रहे थे कि the lost child loses his interest in the things that he wanted earlier because now he's sad and he has lost his parents. उसने वो उदास था, अपने पेरेंट्स को खो दिया था. And before getting anything of his choice like sweets, flower, balloons and joy rides and music, he wants to reunite with his mother and father. वह बिल्कुल अपने माँ बाप से मिलना चाहता था. उनके लिए बैलून और राइड और म्यूजिक और फ्लावर्स और मिठाइयों का कोई महत्व नहीं था. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? ऑब्वियसली the ending of the story is not given. I think that in the end the boy finds his parent standing at the reception. बच्चे को जरूर पेरेंट्स मिला होगा. Thus the child finds his parents and they reunite once again because the child was in safe hand in the hand of the gentleman. तीसरा सवाल है, अंतिम सवाल, what changes do you notice the behavior of the child once he is separated from his parents in the story The Lost Child? देखिए, child along with his parents had been to a fair. वो पेरेंट्स के साथ फेयर में था. He was very excited and happy with the stalls of the toys and sweets. He gets separated from his parents and starts crying. He runs hither and thither in search of his parents, but in vain. Since the place was overcrowded, he got real scared. He started crying as he was all alone. A kind-hearted man offers him many things, but he refuses. The child who wanted everything from the fair was not interested in any of these things, as he only yearned to be with his parents. अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को समझे होंगे, और अगर सचमुच आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 9th क्लास के ढेर सारे वीडियो उसमें डले हुए हैं. आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट. थैंक यू वेरी मच.